do we see the hemocoel being divided into three parts? Right? Now these three areas, open areas are always given one particular term. They are called sinuses. Open area को बोलते हैं sinus. Okay? So ये भी एक sinus है, ये भी एक sinus है, ये भी एक sinus है. Okay? Now ये क्या position है between the terga and the dorsal diaphragm? This is now between ventral diaphragm and sterna के बीच में, और ये दो diaphragms के बीच में है. ठीक है? अब ये जो sinus है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, क्योंकि हार्ट इज लोकेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा यहां लोकेटेड. इसको बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस बिकॉज द नर्व कॉर्ड इज पासिंग थ्रू दिस एरिया एंड द रेस्ट ऑफ द विसेरा गोज थ्रू द सेंट्रल पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीविसरल साइनस. So the entire hemocoel gets divided to how many parts? 3. No, parts nahi. How many sinuses? 3 sinuses. Pericardial sinus, perineural sinus and perivisceral sinus. Easy है एकदम? Okay. Now, तो heart की position dorsal है ventral है? Very good. Nervous system की position ventral है. हाँ. Remember, right. एकदम बत्ती जरा chordates, non-chordates का differentiating table. The heart is ventral, the heart is dorsal. Yes. Okay. चलो, good. At least strike तो हुआ तुम लोग को. ठीक है? So अब ये माउथ एरिया है. So will the mouth parts, ये anterior part है कि नहीं? So आपका लेब्रम यहाँ होगा, लेबियम यहाँ होगा. So ये जो माउथ कैविटी ओपन होगी, will this now lead to an esophagus? जो alimentary canal है. राइट ना, क्रॉप होगा, गिजर्ड होगा, राइट ना, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से पास होगा पूरा. अरे समझ में भी. सो हार्ट इज यहां पर, नर्वस सिस्टम यहां पर आएगा. सी व्हाई एम आई गिविंग यू दिस काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल डायग्राम इज व्हेन यू स्टडी द डिफरेंट सिस्टम्स एटलीस्ट यू कैन इमेजिन का पोजीशन क्या है, और पोजीशन की क्लैरिटी अगर दिमाग में है तो फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है अपना आंसर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू उसका पोजीशन. Okay, so excretion is performed by Malpighian tubules. Now I'll show you the diagram of the digestive system. ये देखो. I'm sorry. ये देखो. Now this is your pharynx, esophagus. ये structure है. वो सब next time पढ़ेंगे हम लोग. ये इतना जो एरिया है ना, ये उसका intestine वाला पार्ट है. This part is divided into 3 parts: foregut, midgut, hindgut. Foregut, midgut and hindgut. The Malpighian tubules, can you see the structure here? The Malpighian tubule is present at the junction of the midgut and hindgut. Midgut और hindgut के junction पे you have Malpighian tubules. So where it is written यहाँ पे ना कि excretion is performed by Malpighian tubules, bracket में just make a note. Position क्या है उसकी? At the junction of midgut and hindgut. Around 100 to 150 such small tubules are present. So are the right ना? अब समझो for example midgut यहाँ पर है, तो will you have these Malpighian tubules यहाँ पर, right ना? Will the Malpighian tubules also be surrounded by the hemolymph? Open system है ना? कैविटी वगैरह है नहीं, ब्लड वेसल्स तो है नहीं सब, ठीक है? Each of the Malpighian tubule कितने हैं? 100 to 150 है. Each of them is lined by glandular and ciliated cells. And they absorb, they मतलब Malpighian tubules, they absorb nitrogenous waste products from the hemolymph, right? जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स होंगे, सब कहाँ डंप होगा? hemolymph में डंप होगा. हमारे सब प्रोडक्ट्स कहाँ डंप होते हैं? ब्लड में होते हैं, ठीक है? सो वहां से जो वेस्ट है उसको लिया and convert them into uric acid. Oh, this is a uricotelic insect है ना? Aquatic insect are amonotelic, but terrestrial insect are uricotelic.
इतना सारा रिविजन हो गया आज तो यार, बहुत सारा रिविजन हो गया आज तो. ओके, which is excreted out through the hindgut now. In addition to Malpighian tubules, there are structures called fat body, nephrocytes, uricose glands. They also help in excretion. Man में the main excretion is done by kidneys. उसके साथ में we have liver, lungs, skin. थोड़ा थोड़ा excretion वो लोग. तो same way यहाँ पर भी थोड़ा excretion इन लोग के through हो जाता है. Are you clear with this, please? Understanding this, right now? इसका position समझ में आया आपने को, right? इसका position is associated with the gut. The Malpighian tubule का position is associated with the gut, between the midgut and the hindgut. Okay. And finally, when we come to the circulatory system, ये रहा उसका circulatory system. Blood vascular system of cockroach is open type. Tell us something new. ये तो पता है आपने को. Blood vessels are poorly developed. Obviously open type है तो poorly developed ही होगा. Circulatory system का diagram देख लो, वहां पर आपको एक ही blood vessel दिखेगा and that is anterior aorta. That is the only blood vessel which is present in the cockroach. They open into space called hemocoel. Did we learn what is the division of the hemocoel? Hemocoel is divided into how many sinuses? 3. Pericardial sinus, perivisceral sinus, perineural sinus. Okay, great. By the means of 2 perforated diaphragms. Okay. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in blood, and here the blood is called as hemolymph. The hemolymph is made up of colorless plasma and hemocytes. Obviously, अपना भी तो blood is made up of what? Plasma and blood cells. So instead of calling the blood cells, they are calling it here as hemocytes. The heart of the cockroach, right now, please यहाँ पर थोड़ा सा दर्द होगा आपको. Is 13 chambered. हाँ, एकदम फोमो आ गया ना. अपने को सिर्फ 4 उसको 13 दिए. Is 13 chambered heart. It is consisting of an elongated muscular tube. मुझे अब इसकी पोजीशन बताओ, आप कौन सा साइनस है? पेरिकार्डियल साइनस. तो अब ये पेरिकार्डियल साइनस, प्लीज देखो यहां पर, ये जो पेरिकार्डियल साइनस है, can you see? This is the way the heart is structured now. It is a 13-chambered heart. Along the mid-dorsal line of thorax and abdomen, सबसे पहले dorsal है, और वो भी dorsal surface के एकदम center में से जा रहा है. So इसको क्या बोल रहे हैं? Mid-dorsal line of the thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chamber. So this is a funnel-shaped chamber. So now let me make one chamber. Second chamber, ऐसा है, funnel shaped chamber with ostia on either side. Ostia means a small opening. Ostia is a very generic term, please. Ostia is a very generic term for any opening. सिर्फ sponges में नहीं है, वहीं पे ostia है बस. हाँ, ostia दिखा मतलब sponge छोड़ने का. Okay, so cockroach अपना cockroach. तो ये एक chamber है, right? So if this is one chamber, one ostia will be located here, and the other ostia will be on the either side लिखा है ना? So दोनों साइड में रहेगा. So आपको यहाँ से डायग्राम में सिर्फ एक ही ostia दिखेगा आपको. ठीक है? Blood from sinuses, blood नहीं, hemolymph ना, बराबर ना? From sinuses, ध्यान से पढ़ना ये सेंटेंस प्लीज, लास्ट सेंटेंस है अपना आज का. ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन. नाउ इस एक सेंटेंस से पूरा सर्कुलेटरी पाथवे एस्टैब्लिश करना है अपने को. सो आपका ये हार्ट है, हार्ट में एंड में आ गया एंटीरियर एओर्टा. सो हार्ट से it will go to anterior aorta. Please,
एंटीरियर एयोर्टा से हेड साइनस में जाएगा, क्योंकि एंटीरियर एयोर्टा यहां ओपन अप होगा. सो दिस विल गो टू द हेड साइनस. हेड साइनस से इट विल गो टू द पेरीन्यूरल साइनस. पेरीन्यूरल साइनस से इट विल गो टू द पेरीविसरल साइनस. जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? परफोरेटेड है ना डायफ्राम. तो अब समझो डायग्राम क्यों परफोरेटेड, ताकि हीमोलिम्फ जो है फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है. पेरीविसरल से इट विल गो टू पेरिकार्डियल साइनस. फ्रॉम पेरिकार्डियल साइनस इट विल एंटर द हार्ट. लेकिन किसके थ्रू एंटर करेगा? ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा. सो ब्लड फ्रॉम sinuses is entering the heart through ostia and flowing anteriorly again, is pumped anteriorly to the sinuses again. So that will establish the entire circulatory pathway. So ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पूरा सर्कुलेटरी पाथवे एस्टैब्लिश करता है. ठीक है, कहीं भी आपको साइनसेस के नाम कोई नहीं पूछेगा. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पाथवे, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द साइनसेस. क्योंकि यहां पर वर्ड साइनस यूज किया है विदाउट मेंशनिंग व्हाट आर द डिफरेंट साइनसेस. राइट, दैट्स व्हाई वी हैड टू dig that what is the different types of sinuses. The area inside the head is called as the head sinus. ब्लड का प्रेशर, ब्लड हार्ट मस्कुलर है ना, पंप करेगा ना वो. हाँ, बता रहा हूँ. अच्छा, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है उसमें और एक छोटा लेबलिंग है. हाँ, वेरी गुड. अलेरी मसल्स. राइट, ये बड़ा ही बकवास डायग्राम है एक्चुअली. हाँ बता, हाँ ऐसे बहुत बकवास डायग्राम है. इफ यू सी द डायग्राम ना, ये वाला, राइट, ये आगे से देख रही है अपना स्पेरेकल वाला डायग्राम है, बराबर. तो ये दो डायफ्राम्स, ठीक है ना. तो ये कौन सा साइनस हुआ? ये तो यहां पर आपका नर्व कॉर्ड आएगा, यहां पर हार्ट का चेंबर आ गया. अब मैं व्यू चेंज किया खाली, आई एम शोइंग यू फ्रंट नाउ. तो यहां पर एक ऑस्टिया, यहां पे दूसरा ऑस्टिया, ठीक है ना. यहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल आ गया बीच में. ये एलआरई मसल्स जो है ना, इट इज लाइक दिस. Although they are called as heart muscles, but they are not attached to the heart. Can you see they are attached to targa and the diaphragm? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एलआरई मसल्स स्ट्रेच होते तो क्या ये पेरिकार्डियल साइनस को बड़ा कर देंगे? राइट ना. और जब वो रिलैक्स होगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो अपने साथ वो फ्लूइड को ऊपर लेके आएगा, और वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट प्रेस को पुश करेगा. सो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए ये एलआरई मसल्स काम आते हैं. क्योंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको फ्लूइड को धक्का मारना पड़ता है. सो प्रेशर थोड़ा सस्टेन करेगा, मस्कुलर हार्ट है, प्रेशर थोड़ा सस्टेन करेगा, लेकिन आगे जाने के लिए एलआरई मसल्स की हेल्प लगती है उसको. ओके, सो एलआरई मसल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लीज. That's why it has been given in the diagram, but the position is not very well seen in the diagram. So इसका position एलआरई मसल्स का ऐसा है. Done please. So morphology हो गया अपना, respiration हो गया, excretion हो गया और circulation हो गया. We'll left with 3 systems which we can pick up next time. ठीक है? So thank you very much. कहाँ पे?
शुभम करो तो रात को नींद नहीं आएगी। और जब स्टूडेंट को नींद नहीं आती ना, वो परेशान किसको करता है? टीचर को, राइट ना? सो टू प्रोटेक्ट माई स्लीप आई हैव टू सॉल्व दिस डाउट। ओके, ये वाला डायग्राम अपना रेफर करने का रहेगा, राइट ना? दिस नाउ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ पार्ट्स फ्रॉम इट। वी हैव द एंटेना कवर्ड, हेड कवर्ड है, कैन यू सी टेक मी ना? तो ब्रैकेट में आप फोरविंग लिख देना प्लीज, राइट? और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? मीसोथोरैसिक। हाइंड विंग में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ट्रू विंग, मेटाथोरैसिक। वेरी गुड। नाउ पार्ट्स ऑफ द थोरैक्स में कैन यू लुक एट मेटाथोरैक्स प्लीज? मीसोथोरैक्स भी दिख रहा है, और मीसोथोरैक्स के ऊपर और एक लेबलिंग क्या है? प्रोनोटम। वो प्रोथोरैक्स नहीं है। सबसे बड़ा गड़बड़ जो लेबलिंग में होता है यहां पर, राइट? आई गिव यू दिस डायग्राम, आई विल लेबल ए, बी एंड सी। तो हाँ, क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू प्रो, मीसो, मेटा, तो यहां पर प्रोनोटम मिस हो जाता है अपने से। और ये प्रोनोटम जो है ना, वो प्रोथोरैक्स को कवर कर रहा है। प्रोनोटम जो है वो प्रोथोरैक्स को कवर कर रहा है, इसलिए वहां से विंग्स भी नहीं है और स्पिरैकल भी नहीं है, बिकॉज वो पूरा एनक्लोज्ड है। इसलिए ये डायग्राम में अपने को प्रोथोरैक्स नहीं दिख रहा है, राइट? ये प्रोनोटम वाला पार्ट डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये मिस हो जाता है अपने से। अभी क्लियर प्लीज? ठीक है? हाँ, नहीं, सिर्फ ऊपर से, नीचे से लेग्स तो है ना?